خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ ڈی پی او قصور عمران کیشور اور ڈی ایس پی پتو کی آصف جویا کے ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ناجائز اسلحہ رکھنے والے، منشیات فروخت کرنے اور اشتہاری کو پناہ دینے والے کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی کے ایس ایچ او چودھری مطلوب نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے دوران سجاد حسین کو ناجائز اسلحہ رکھنے، عظیم احمد سے زہریلی شراب جبکہ ایک ملزم سجاد کو اعجاز اشتہاری کو پناہ دینے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں سخی سرور کا۔ سخی سرور سے مرید عباس کھوسہ کی رپورٹ کے مطابق ایس پی انویسٹیگیشن ڈیرہ غازی خان زہیب نصر اللہ رانجھا نے پولیس تھانہ سخی سرور کا وزٹ کیا۔ دوران وزٹ تھانہ کے حوالات میں نصب کیمروں، اسلحے کی خبرگیری اور تھانے کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ تھانے کے ایس ایچ او اور تفتیشی افسران سے جرائم کے متعلق تفصیلی میٹنگ کی گئی۔ محرر تھانہ نے حوالات میں بند ملزمان کی ترتیب وار تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن زہیب نصر اللہ رانجھا نے فرنٹ ڈیسک پر آن لائن ریکارڈ کے ذریعے زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا اور ان کو جلد از جلد یکسو کرنے کا حکم دیا۔ انویسٹیگیشن نے ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ تھانہ میں آنے والے سائلین کے مسائل کو فوری حل کیا جائے اور ان کے ساتھ انتہائی شائستگی سے پیش آئیں، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ اب رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا۔ پولیس کی بڑی کارروائی، معصوم لوگوں کو دھوکے سے بلا کر اغوا کر کے طاغیانی گینگ کو مہیا کرنے والا اور جاگیرانی اور طاغیانی گینگ کا سرغنہ سہولت کار گرفتار کر لیا گیا۔ کنکوٹ ایس ایچ او بی سیکشن عبدالقادر بنگوار اور انچارج سی آئی اے اور اسپیشل ٹیم عثمان پنور پولیس اسٹیشن بی سیکشن کی حدود الولا کے قریب کارروائی ہوئی۔ کنکوٹ اغوا، برائے تاوان اور دیگر جرائم میں انتہائی مطلوب اور طاغیانی گروپ کا سرغنہ سہولت کار اشتہاری ملزم ملکزار ولد چاکر بھالکانی اسلحہ شاٹ گن کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ کنکوٹ ٹیکنیکل رپورٹ کے مطابق ملک گلزار بھالکانی معصوم لوگوں کو لیڈیز وائس میں دھوکے سے بلا کر طاغیانی گینگ کو دیتا تھا اور اغوا برائے تعاون میں طاغیانی گینگ کی معلومات کرتا تھا اور طاغیانی گینگ کا سرغنہ سہولت کار تھا۔ کنکوٹ گرفتار ملزم پر مقابلے کا کیس کرائم 53/2021 انڈر سیکشن 402399 پولیس اسٹیشن بی سیکشن کنکوٹ اور بغیر لائسنس اسلحہ برآمدگی کا کیس کرائم 54/2021 انڈر سیکشن 8231 سندھ آرمز ایکٹ پولیس اسٹیشن بی سیکشن کنکوٹ میں کیس داخل کر لیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں شکارپور کا۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری بوائز اسکول قائم خان ودیو میں استاد نامکمل، شاگردوں کی تعلیم کے معیار کو خطرہ۔ بیورو چیف صدیر کھکھرانی کی رپورٹ کے مطابق شکارپور تحصیل گڑھی یاسین کے نواحی گاؤں قائم خان ودیو میں گورنمنٹ ایلیمنٹری بوائز اسکول قائم خان ودیو کے ہیڈ ماسٹر اعجاز احمد ودیو نے بتایا کہ اسکول میں شاگردوں کی تعداد 350 ہے جبکہ اساتذہ صرف 3 ہیں۔ اس موقع پر اس نے سی ایم سندھ سعید مراد علی شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اسکول میں ٹیچرز کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم کا معیار اچھا بنا سکیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول قائم خان ودیو جو मां हेड मास्टर अर्ज़ो कयां त असांजे स्कूल में तक़रीबन 350 शागिर्द तालीम वठी रहिया आहिनि, सिर्फ़ु उस्ताद 3 आहियूं। जेको गवर्नमेंट खे ख़बर आहे, गवर्नमेंट ॼाणे थी 350 शागिर्दनि में 3 उस्ताद छा था कराए सघनि। असांजी इल्तिजा आहे ऑफिसर साहिबान खे, वज़ीर आला सिंध खे, वज़ीर आज़म खे त असांखे उस्ताद न वञनि, तालीम जो मयार असां वटि तॾहिं वधी सघंदो, तालीम तॾहिं सुधरी सघंदी जिते उस्ताद हूंदा। उस्ताद जे न हुजण जे करे ॿाराड़ीअ में, ख़ासि करे ॿाराड़ीअ में ही तालीम बर्बाद ऐं पोइ ते पइजी वई आहे। जेकॾहिं उस्ताद ॾिना वेंदा त हर हिकु क्लास में जेकॾहिं हिकु हिकु उस्ताद हूंदो त उन क्लास जो मयार बि वधंदो, तालीम बि सुधरंदी ऐं उन स्कूल जा शागिर्द अॻिते हली पंहिंजो नालो नामूस कंदा। जेकॾहिं इहे ई रहियो थो त इहा असांजी सिंध जी तालीम सां नाइंसाफ़ी आहे ऐं इहा तालीम तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदी। اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا۔ پاک پتن میں ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ پاک پتن دیپال پور روڈ پر تیز رفتار 2 گاڑیوں میں خوفناک ٹکر ہو گئی۔
पाक पतन हादसे में खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। पाक पतन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद वक्त का अव्वलीन तकाज़ा और हमारी आलमी ज़रूरत है। अगर मसलकी, ग्रोही, फ़रोई इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके कौम बाहम एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी तरह की जारहियत का निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकती। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमैन महज वक्ती ज़रूरत नहीं बल्कि एक लाजिम नागुज़ेर अमल है जिसे पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने और कायम रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने की बैरूनी साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। जो ताकतें पाकिस्तान में सियासी, मजहबी या ग्रोही इंतशार पैदा करना चाहती हैं उन्हें लगाम डालने के लिए तमाम तबकात को किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मनान इस्लाम की ये कोशिश है कि वो मजहबी मनाफरत फैलाकर मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आर करें। इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद का मुजाहरा करना और दीन इस्लाम के असूलों और तालीमात को मुकद्दम रखते हुए अखुवत रवादारी को अपनाना होगा। पूरी कौम जहन नशीन कर ले कि आलमी दुश्मन तौहीन और तकफीर के हथियार से मुल्क कौम के इस्तेहकाम को निशाना बनाना चाहते हैं, मगर हमने वहदत व अखुवत से साम्राज्यी दुश्मनों को नाकाम बनाना है। चुकी है कोरोना की वजह से जितना इसको ग्रो करना चाहिए था वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी है, जिसमें आटे का फुकदान है, चीनी का फुकदान है, काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो इंडस्ट्री के साथ अटैच होती हैं। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी, मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो कोई भी गरीब मुल्क नहीं उठ सकता। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फ़कार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नया मरबूत बल्दियाती निज़ाम ला रही है जिसके तहत इलाकाई सतह पर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बुनियादी हकूक़ हर शहरी को उसकी दहलीज पर मैसर आएंगे और इलाकाई तमीर व तरक्की यकसानियत के असूल पर यकीनी बनाई जाएगी। कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI हर हलके में बासलाहियत और बाकिरदार वक़ार उम्मीद मैदान में उतरेगी जो तारीख़ और साज़ अवामी मैंडेट से कामयाब होकर अवाम की खुशहाली और इलाकाई तमीर व तरक्की की नई मिसाल रकम करेंगे। उनका मज़ीद कहना है कि अवाम ने जिस तरह आम इंतखाबात समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के साथ साथ तमाम ज़मनी इंतखाबात में PTI पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और दीगर सियासी जमातों के लिए नोश्ता दीवार हैं। अपोजिशन को समझ में आ जाना चाहिए कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी तारीख साज फतह PTI के उम्मीदवारों का मुकद्दर बनेगी। के हवाले से तो इसी तरह हम अपने मुल्क में भी अपने मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएंगे और पोल्यूशन से पाक करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये आपको पूरा मुल्क सरसब्जो शादाब नज़र आएगा इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मेराज खालिद गुजर ने कहा कि कौमी खजाने में नकब लगाने वाले किसी रो रायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी को हुकूमत से जोड़ने वाले दरअसल हकायक से पर्दापोशी कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने यह काम करना होता तो आज कोई अपोजिशन रहनुमा आज़ाद घूम न रहा होता। एहतसाब और गिरफ्तारियां नैब और दीगर एहतसाब इदारों का मामला है। PTI की हुकूमत का इससे कोई अपना लेना देना नहीं। हुकूमत सिर्फ इन इदारों को आइन में दर्ज इंतज़ामी सहूलियात फराहम कर रही है। उनका मज़ीद कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की तकमील की खातिर मुतल्लिका वजारतों को जो अहदाफ दिए गए इन पर पूरी तंदही से अमल दरामद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ की फ्राहमी, मेरिट की बलादस्ती और गवर्नेंस को फ़रोग़ दे रही है। अवामी मफाद की तरक्याती स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। मज़ीद उनका कहना है कि हुकूमती कारकर्दगी ने अपोजिशन रहनुमाओं की बोलती बंद कर दी। हुकूमत पर उंगलियां उठाने वाले 3 साला मिसाली हुकूमत कारकर्दगी के बाइस आज उंगलियां मुंह में दबाने पर मजबूर हैं।
अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में तालीम और सेहत की सहूलियात यकसां फराहम की, कौम को यकसां तालीमी नसाब दिया, सेहत के शोबे को फाल किया और इंसाफ सेहत कार्ड से आम आदमी को आला मयार के अस्पतालों तक सहूलियात सेहत की खातिर रसाई दी और मुफ्त इलाज मुकम्मल बनाया। तरक्याती कामों का जाल पूरे मुल्क में फैलाया, रोजगार के मौके बढ़ाए, आम आदमी को छत की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए आसान शराइत पर कब्जों की फ्राहमी यकीनी बनाई। किसानों को फसल की मंडी तक रसाइल में सहूलियात देने समेत हर सतह पर रिलीफ फ्राहम किया। उन्होंने कहा कि सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुल्क भर में इकनॉमिक जोन्स कायम किए जा रहे हैं। हर शोबे में हुकूमती कारकर्दगी गैर मामूली वगैरह रवायती है। मौजूदा हुकूमत हकीकी मुआयनों में अवामी मसाइल हल कर रही है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में भी अवाम के तावान और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध समेत मुल्क भर में हुकूमत कायम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो इस मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने की सलाहियत और अज़म रखते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन का नहीं सोचते बल्कि वो कौम के रोशन मुस्तकबिल और कामयाबी का सोचते हैं। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दामात उठा रही है और अवाम के मसाइल अवाम पर ही खर्च कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम आपको एक बहुत अच्छा वर्कर दिया। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी महंगाई की शिद्दत में इजाफा, दाल, चीनी और रोज़मर्रा की तमाम अशिया गरीब के खरीदने की पहुंच से दूर। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट एक किराना स्टोर में, जहाँ मुल्क भर की तरह महंगाई बढ़ती हुई आवाम बहुत परेशान है। मज़ीद हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं इस महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी आपका शुक्रिया। देखते जा रहा है कि महंगाई के हवाले से तो बहुत इमरान खान ने महंगाई किया, आवाम बहुत परेशान है। जो रोज़ 300 दिहाड़ी कमाता है वो कहाँ से पूरा हो जाए। ये जो अशिया की खाना पीना की रोज़ मरहले की शय हैं, आटा है, चीनी है, जो भी शय हैं उनमें तो शय बात आसमान से बातें करने की बहुत महंगाई है। खुदा ये महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। जी अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। 7 शरीफ रिपोर्ट निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा सेप्को की नाहली तहसील 7 के मरकजी तजारती टाउन भान सईदाबाद में सीवरेज का नाला साफ करते हुए बिजली का करंट लगने से एक सेंट्री वर्कर नबर शेख नामी हलाक, 3 वाहद बख्श शेख, सागर शेख और हब अली शेख शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक 7 शरीफ तहसील के सबसे बड़ी तजारती शहर भान सईदाबाद में टाउन कमेटी भान सईदाबाद के 4 खाकरोब इस वक्त बिजली के करंट से शदीद जख्मी हो गए जब वो शहर के चन्ना मोहल्ले के मरकजी सीवरेज नाले को साफ करने के लिए नाले में उतरे। नाले में पहले से मौजूद ट्रांसफार्मर की तार गिरी पड़ी थी जिसने एक खाकरोब 27 साला नबन शेख की मौके पर जान ले ली, जबकि 3 खाकरोब वाहद शेख, हब अली शेख, सागर शेख सख्त जख्मी हो गए, जिन्हें 7 की सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट लाया गया जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। ताहम जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि फोती की नाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद वाहकीन के हवाले कर दी गई। कौमी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरा हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। टायर नजर आतिश, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। हमारे इलाके में 8 रोज़ से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। मुजाहिरीन अल्लाह अल्लाह करके ट्रांसफार्मर लगा तो बिजली के आते ही ऐसे आग लग गई। मुजाहिरीन ने ट्रांसफार्मर धमाके से फटा इलाके में खौफ तारी हो गया, जानी नुकसान भी हो सकता था। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फिलफौर ट्रांसफार्मर की मरम्मत करके बिजली की फ्राहमी को बहाल किया जाए। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का। भोंग में भी अवाम के मसाइल हल करने के लिए थाना भोंग में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी की सरबराही DSP सर्कल सादिकाबाद अब्बास अख्तर ने की और लोगों के मसाइल सुने और मौके पर SHO थाना भोंग को मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، آئی جی پنجاب راؤ سردار علی، ڈی پی او رحیم یار خان، افسر سرفراز کی ہدایت کے مطابق ڈی ایس پی سرکل صادق آباد عباس اختر اور ایس ایچ او تھانہ بونگ چودھری محمد الیاس گواریہ نے تھانہ بونگ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں اہل علاقہ سے آئے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر اس کو حل کرنے کے لیے ایس ایچ او تھانہ بونگ کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی عباس اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے وین کے مطابق کھلی کچہری لگائی گئی ہے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ بونگ چودھری محمد الیاس گورائی نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے اور میری عوام سے گزارش ہے کہ علاقے کے امن و امان کے لیے عوام پولیس کا ساتھ دیں۔ میں تقریباً پچھلے 1 ماہ سے بطور ایس ایچ او بونگ کام کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں آ کے حالات کے پیش نظر گشت کو مؤثر بناتے ہوئے تمام گاڑیوں کو ملازمان کو آن روڈ کیا۔ تقریباً رات کو 5 بجے، شام کو ہماری 5 بجے گشت نکل جاتی ہے اور تقریباً صبح تک ہماری گشت جاری رہتی ہے۔ اس سے انسداد جرائم میں کافی روک تھام ہوئی ہے، عوام کو بھی تحفظ ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور کرائم میں بھی بڑا خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور ہم اس میں اور بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو عوام کے ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی خدمت، ان کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے انشاءاللہ اس جرائم کا کلا کما کرنا ہے اور لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔